آپ کو مصدقہ اطلاعات اور انفارمیشن ملی ہوگی۔ ایسا ٹاک شو کیا ہے کہ جسے آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ ایک لفظ ہے نظریاتی گروپ کے وائس چیئرمین رانا امتیاز کے ساتھ پیش آیا۔ انسان کو انسان سے کبھی نفرت نہیں ہوتی۔ مٹی روز سناوے بندیا سدھے رستے آویں بندیا سجدوں میں جاتے ہیں، تو پاک پروردگار کیا کہتا ہے؟ بھاویں رو رو سجدے کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آغا محمود الحسن لودھی المعروف آغا لودھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین یقیناً آپ اب تک جتنے میں نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں خالد ہیرا کے ساتھ، آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور آپ کو مصدقہ اطلاعات اور انفارمیشن ملی ہوگی۔ وہ آپ کی ڈیمانڈ تھی خالد ہیرا کے حوالے سے، جو میں نے پوری کی 6 7 8 مہینے کی تگ و دو کے بعد انہیں راضی کیا۔ تو انہوں نے بھی بھاجی نیت لیا کہ انہوں آغا صاحب تواڈے نال سچیاں گلاں کھریاں گلاں دے وچ تواڈے نال اسی ٹران گے، جنہاں حالاتاں تو اسی گزر کے آئے ہیں، اسی دساں گے بھاجی انہاں رستیاں تے حالاتاں تے دوبارہ کدی نہ جانا۔ ناظرین انہی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ٹاک شو کیا ہے۔ ایسا ٹاک شو کیا ہے کہ جسے آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ ایک لفظ ہے اردو کا، انگشتے بدندار رہ جائیں گے، یعنی کہ آپ کے منہ میں انگلیاں آ جائیں گی۔ میں جس مقصد کو، جس ایم کو لے کر چلا تھا، جس مقصد کے لیے میں نے یہ یوٹیوب کا چینل بنایا اور ویڈیو ریکارڈ کر کے ویلاگ آپ تک پہنچانا شروع کیے، اس کی منزل کی پہلی سیڑھی پر میں آن پہنچا ہوں۔ ناظرین میں یہی چاہتا تھا کہ میں مخالفوں کو محبت کی سٹیج پر لے آؤں، میں دشمنوں کو دل کی سٹیج پر لے آؤں، میں ان لوگوں کو جو عرصہ دراز سے ایک دوسرے سے دور ہیں ان کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر لے آؤں، اور میں لے آیا ہوں۔ مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب یہ ٹاک شو آپ کے سامنے آئے گا، آپ کیا میرا تمام ویلاگر بھائی اس بات کی تصدیق تائید کریں گے کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا، ویلاگ شروع کیے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ، پہلا قدم میں نے اٹھا لیا ہے۔ اسی ٹاک شو میں ایک ایسا واقعہ بھی آپ کے سامنے خالد ہیرا صاحب کی زبانی سناؤں گا جو کہ سہیوال جیل سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا واقعہ جو ایم ایس ایف نظریاتی گروپ کے وائس چیئرمین رانا امتیاز کے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ جب آپ سنیں گے تو نہ صرف آپ لوٹ پوٹ ہوں گے بلکہ آپ انگشتے بدنداں بھی ہوں گے، جس کا اردو میں مطلب ہے کہ آپ اپنے منہ میں انگلیاں دے دیں گے ہنس ہنس کے۔ وہ واقعہ جب آپ سنیں گے، بلکہ رانا صاحب جب وہ واقعہ سنیں گے ہنسیں گے بھی صحیح اور کہیں گے بھی صحیح کہ یار خالد ہی رحم بجیا تو کی یار اتھے کٹ کے تے سنا دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک ویورز نے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ وہ کون سا اچھے لوگ تھے، برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ماں کے پیٹ سے پیدائشی برا یا مجرم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، انسان کو انسان سے کبھی نفرت نہیں ہوتی، انسان کو کبھی برا نہیں سمجھتا، انسان کے کردار سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، انسان کا کردار ہی انسان کو برا لگتا ہے۔ جب کردار کسی کا ایسا ہوگا تو وہ دوسرے کو برا لگے گا۔ اگر انسان کو برا لگتا ہو، اگر انسان کو پسند نہ کرتا ہو تو میرے خیال میں روز ہی لاکھوں کروڑوں انسان ایک دوسرے کو مار کر دنیا سے رخصت کر دیں یا رخصت ہو جائیں۔ بات یہ سمجھنے کی ہے، آپ نے اس کو کس نہج پہ سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ مجھ سے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا دوبارہ جواب دوں گا۔ ایک بھائی ہیں، ایک دوست ہیں، انہوں نے تقریباً پنجاب کی تمام جیلیں دیکھی ہیں، وہ ویلاگز دیکھتے ہیں ہمارے۔ انہوں نے آج میرے سے فون پر رابطہ کیا۔ ارشد بیگ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے لاہور پنجاب کی کافی جیلیں دیکھی ہیں، اڈیالہ جیل تک میں گیا ہوں۔ آپ کا پروگرام اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ماضی کے جن لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرف نہ جائیں، یہ رستے اچھے رستے نہیں ہیں۔
आप इसके साथ साथ ये भी कहें कि लोग आज मंशियात की आदत में मुब्तला हो रहे हैं, इसके बारे में बात करें। तो अरशद बेग साहब, मैं इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर अभी कह देता हूँ, वो ये कि जहाँ मैं आपको जराइम के रास्ते से रोकता हूँ तो ये भी जुर्म का एक रास्ता है। जब आप किसी चीज़ के आदी होंगे, आप किसी हशीश लेंगे, चरस लेंगे, अफीम लेंगे, शराब लेंगे या कोई ऐसी चीज़, किसी चीज़ के आदी हो जाएंगे, किसी भी चीज़ की नशे की आदत में, लत में पड़ जाएंगे, अगर आपको उसके ख़रीदने में, आपको उसे दस्तयाब करने में आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप चोरी करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप राज नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप डकैती करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो माजी में ऐसी हज़ारों मिसालें हैं कि नशई बच्चों ने, नशई खामदों ने अपने बच्चों की गर्दनें काटी हैं, नशई खामदों ने अपनी बीवियों की गर्दनें काटी हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि सीसीडी हर एक जुर्म के ख़िलाफ़ काम कर रही है। सीसीडी मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भी काम कर रही है, सीसीडी जुए अड्डों के ख़िलाफ़ भी काम कर रही है, सीसीडी कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ भी काम कर रही है। मैं कहता हूँ कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कब्ज़े के हवाले से आपको एक मिसाल देता चलूँ, बल्कि आँखों देखा एक वाक़या बताता चलूँ कि एक शख्स की तदफीन हो रही थी, उस शख्स की तदफीन हो रही थी म्यानी साहब में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो रूढ़ी थी, रूढ़ी समझ दो भाजी, कूड़े दा ढेर, उसकी वहाँ तदफीन हो रही थी। मैंने सख्ती से मना किया कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, इस शख्स की तदफीन यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसको अच्छी जगह पे ले चलें। वहाँ से लेकर हम तकरीबन 20 गज़ के फासले पर गए। जब उसकी खुदाई की तो 1 फुट नीचे फिर रूढ़ी गंद निकल आया। वहाँ से फिर 20 गज़ के फासले पर जब गए तो वहाँ जाकर फिर 1.5 फुट के फासले पर गंद निकल आया, रूढ़ी निकल आई। तो मैंने वो अल्फाज वहाँ जो कहे वो मैं दोहराए देता हूँ। इससे पहले भी एक वीलॉग में मैंने दोहराए हैं कि मिट्टी एनू लैंदी नहीं ते रूढ़ी एनू छड़दी नहीं। कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ ये मेरा एक पैगाम है नसीहत के लिए कि जिस मिट्टी के पर आप कब्ज़ा करते हैं, जिस ज़मीन पर आप कब्ज़ा करते हैं, जिनके घरों पर आप कब्ज़ा करते हैं, एक बात ये ज़ेन नशीन कर लें, 10 मरले से लेकर 10 एकड़ तक, 10 मुरब्बे तक, जितने मर्जी घर पर आप कब्ज़ा कर लें, उसके एक कमरे की, एक बेड की, एक नुक्कर पे आपने सोना है। जो आपने हलाल चीज़ खानी है, अगर उसके ज़राए हराम हैं तो वो भी हराम है। ये चीज़ें आप कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले से मेरे पास 2 शेर हैं। वैसे तो पंजाबी की बड़ी नज़म है, मिट्टी रोज़ सुनावे बंदिया, मिट्टी जिसके ऊपर आप कब्ज़ा करते हैं, मिट्टी रोज़ सुनावे बंदिया, सीधे रस्ते आवी बंदिया, मिट्टी रोज़ सुनावे बंदिया, सीधे रस्ते आवी बंदिया, मैं ते पुन दी पहरेदार हाँ। क्या कहती है वो? मैं ते पुन दी पहरेदार हाँ, पाप उत्थे छड्ड आवी बंदिया। वो आपको ये मैसेज देती है कि मैं पुन वाले नूं संभाल के रखांगे। आपने बहुत से वाक़यात ऐसे सुने होंगे कि लोगों की जब कब्रें खोदी जाती हैं या कब्रें गिर जाती हैं तो बाज़ मय्यतें बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ी होती हैं, उनमें शहदा भी होते हैं, उनमें परवरदिगार के नेक लोग भी होते हैं। और कुछ ऐसी कब्रें भी आप उनके बारे में आपने हालात सुने होंगे कि कहीं से सांप निकल रहे हैं, कहीं से बिच्छू निकल रहे हैं, कहीं से न्योले निकल रहे हैं, कहीं से से के कंडे निकल रहे हैं और कहीं से गो निकल रही है। ये वो कब्रें होती हैं, ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में पापी पेट की खातिर अपनी अना को सर पर उठाए, अपनी ताकत के नशे में धुत, अपने इख्तियार के नशे में धुत ये कहते हैं कि मेरे तो वड्डा कोई नहीं। जब वो ज़ेरे ज़मीन मट्टी में जाता है, जिस मट्टी पर वो कब्ज़ा करता है, जिस मट्टी पे अकड़ कर चलता है, तो मेरे तो वड्डा कोई नहीं। तो फिर वो मट्टी क्या कहती है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसलिए मट्टी कहती है सीधे रस्ते आमी बंदिया, सीधे रस्ते आमी बंदिया। और ये भी नहीं है कि आप धंधा 2 नंबर करते हैं, आप मंशियात फरोशी करते हैं, आप रस्सागीर हैं, आप चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, आप किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं, आप गरीब की गुर्बत को दबाकर अपनी ताकत का, अरूज का ज़ोर दिखाते हैं। ये बात याद करें और उसके बाद सजदों में जाते हैं तो पाक परवरदिगार क्या कहता है? भावें रो रो सजदे कर लै, भावें रो रो सजदे कर लै, जिन्ने मर्जी तरले कर लै।
क्या कहा है मैंने कि भावें रो रो सजदे कर लै और जिन्ने मर्जी तरले कर लै, रब ने वेखनी नीयत तेरी, बंदिया नीयत सीधी कर लै। नीयत सीधी कर लें। जब आपकी नीयत सीधी होगी ना, आपकी इतनी सी चीज़ जो है, इतनी सी, वो इतनी बड़ी नेकी बनकर आएगी। आपकी इतनी सी अच्छाई, एक तीले के बराबर जो अच्छाई होगी वो बहुत बड़ी होगी। आप ये ज़हन में रख लें कि हर वो धंधे से 2 नंबर आया हुआ पैसा, चाहे रिश्वत का है, चाहे किसी भी ज़रिए से आया है, उससे आप जो भी चीज़ लेकर ख़रीद कर खाएंगे और खिलाएंगे वो हलाल नहीं होगी, वो हराम होगी। चाहे कब्ज़े से आई है, चाहे कैबा खाने से आई है, चाहे शराब खाने से आई है, चाहे मंशियात फरोशी से आई है, जिस भी धंधे से आई है, उस कमाई के पैसे से ख़रीदी जाने वाली जो हमारे दीन ने हलाल चीज़ें करार दी हैं वो भी हराम होगी। आपका उम्रा भी जायज़ नहीं है, आपका हज भी जायज़ नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ आपको अपनी दानिश्त और सोच के मुताबिक। और मंशियात फरोशों से मैं दस्त बदस्ता कहूँगा कि ना खुद अपनी आखरत ख़राब करें, ना अपनी यंग जनरेशन की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करें। इन रास्तों पर कदगन लगाएं। हुकूमत तो लगी हुई है, मरियम नवाज़ के बड़े अच्छे फ़ैसले हैं। मैंने पहले भी कहा है कि उसके बाज़ ऐसे फ़ैसले हैं कि जिससे मुझे दिली खुशी हुई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन जो फ़ैसले बहसीयत हाकम, बहसीयत हुक्मरान पंजाब वो कर रही हैं, वो बहुत अच्छे कर रही हैं। ये काम मंशियात फरोशी के ख़िलाफ़ भी सख्त सख्त इक़दाम उठाना चाहिए, उठाए भी जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जाएं। इसी तरह जो डकैतियाँ करते हैं, जो राजनी करते हैं, जो असमत दरियाँ करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएं। तो आइए हम आते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा था। एक दोस्त ने सवाल किया, उसने कहा कि आपने जनाब असद प्रिंस का बता दिया वो क्या खाना पसंद करता था, आतिफ चौधरी का बता दिया वो क्या खाना पसंद करता था, आपने हीरे का नहीं बताया, हीरे ने अपना नहीं बताया वो क्या खाना पसंद करता था, आगा नवीद क्या खाना पसंद करता था। बल्कि मैं आपके सामने मैं उनसे ये भी सवाल करूँगा कि वो कौन कौन से गाने पसंद करते थे, किन किन हालात में उनकी ज़िंदगी गुजरी, कोई ऐसे वाक़यात जो उनकी मफरूरी के दौरान उनके साथ हो गुज़रे, उस पर भी मैं उनके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं। खालिद हीरा साहब के साथ अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुए। खालिद हीरा ने साढ़े ना नीयत लईए, उन्होंने कहा आगा साहब नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने, पिछलियां माफ़ियां रब कोल मंगने ते नाल भी कोशिश करने कि अपनी नवी नस्ल नूं दस दे जाइए कि यार सीधे रस्ते चल पो, सीधे रस्ते चल पो। तो ये हमारा एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाना था। नाज़रीन, एक दोस्त हैं शहजाद, उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई। असल में मेरे दोस्त तो नहीं हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले। उन्होंने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम से उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया, मुझसे रब्ता किया। असल में वो सना गुज्जर के क्लास फ़ेलो हैं। वो सलीम मॉडल स्कूल में पढ़ते रहे हैं, सना गुज्जर के क्लास फ़ेलो हैं। उन्होंने मुझे सना गुज्जर की तस्वीर भी शेयर की हैं। नाजरीन, ये दो नौजवान जो आप देख रहे हैं, इनमें लेफ़्ट साइड में पैंट शर्ट में मलबूस नौजवान मियाँ दाऊद है और जबकि दूसरा शलवार कमीज़ में मलबूस सना गुज्जर है। आप इसकी सेहत और उम्र का अंदाज़ा इसकी तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं आपके साथ बैठकर पॉडकास्ट करूं सना के बचपन के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनको भी दावत दूंगा, वो आएंगे मेरे पास, प्रोग्राम में बैठेंगे। मैं हर उस शख्स को लेकर आऊँगा जो माजी के नामवर शख्सियात के साथ पढ़ता लिखता खेलता कूदता रहा है, ताकि आप तक उनकी बचपन की बातें पहुँचें कि बचपन में वो कैसे थे, जवानी में वो कैसे थे और ज़िंदगी उनकी कैसे बदली और कहाँ से कहाँ वो चले गए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आप मेरे पॉडकास्ट देखते हैं, मेरे प्रोग्राम देखते हैं, आप मुझे ओब्लाइज करते हैं, आप मुझे प्रमोट करते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि जितने मुझे लोग देखते हैं उतने मुझे लाइक्स नहीं मिलते। अब ये देख लें कि नॉन सब्सक्राइबर जो हैं वो 86% जो हैं मुझे देखते हैं और सब्सक्राइबर जो हैं मुझे
14% देखते हैं। अगर ये 86% मुझे सब्सक्राइब कर लें तो मेरे ख्याल में रीच भी बढ़ेगी। मुझे इससे कोई लालच नहीं है। मैं कहता हूँ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं हर अगला वीलॉग या पॉडकास्ट अपलोड करता हूँ वो फ़ौरन आप तक पहुँचे, किसी और के तवस्सुत से आप तक ना पहुँचे। यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मेरी, आपकी, मुल्क के खुदादाद की इज़्ज़त व वक़ार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।